Hello, dear student. Welcome to all. So today we will discuss the paper of MPSC Rajya Seva 2024. So here first question is from physics. A particle throws up has zero velocity, but how much will be the acceleration? Acceleration is depends on gravity equal to acceleration due to gravity. Very easy question. When a particle throws up, whenever a particle throws up, we get the acceleration in terms of small g, that is 9.8 meter per second square. Small g is equal to capital G capital M upon r square. Small g is known as acceleration due to gravity or gravitational acceleration. Next question is, which one of the following is not an application of Bernoulli's equation? None of the above is the application of Bernoulli's equation. Again, an important question. Bernoulli's equation is already asked in previous version. 2023 का पेपर आप देखोगे, बर्नौलीज इक्वेशन पूछा था, बट वो क्वेश्चन आपका कैंसिल हो चुका था क्योंकि गलत इक्वेशन था. तो वो आप बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते तो ये पता होता. नेक्स्ट क्वेश्चन is a tough question. At room temperature 300 K, what is the significant contribution wavelength for the thermal radiation emitted by a body? टफ क्वेश्चन ऐसे मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें कौन बाय हार्ट करके रखेगा. 30 K, K is what? K is Kelvin. रूम टेम्परेचर ये भी याद रखो, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है. 300 केल्विन मींस 27 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस एंड केल्विन में क्या डिफरेंस है? हम सेल्सियस में 273 ऐड करके उसको केल्विन में डिवाइड, मतलब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं. पिछले साल में जो क्वेश्चन आया था उसमें फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन था, वो भी हमने करवाया था. तो क्या आएगा आंसर इसका 53 का? रेडिएशन इमिट, कौन सा रेडिएशन इमिट करते हैं उसके बारे में पूछा गया है. तो 9550 नैनोमीटर बाय हार्ट होगा तो वो आंसर दे सकते, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, a easy question from chemistry. Which of the following sentence is wrong? So in this question, most of the student mistakenly tick right, but they ask which of the following statement is wrong? Proton has a positive charge, atomic nucleus is made up of proton, neutron, absolutely right. Electron has negative charge, again right statement. Neutron has positive charge, wrong. Only 4. Neutron, name comes from neutral. Neutron is neutral. So answer is 4. Next question is from physics. In the chapter sound energy, say whether following sentences are true or false. For propagation of sound, medium is necessary. Absolutely right statement. That's why in mediums sound propagate. Units of frequency sound is hertz, again right. Loudness of sound is expressed in decibel, right statement. So all statements are right. For propagation of sound, medium is necessary. That's why sound is not propagated in vacuum space. But light energy is not that. For propagation of light energy, medium is necessary. अगर ऐसा स्टेटमेंट होता तो वो फिर क्या हो जाता? फॉल्स स्टेटमेंट. साउंड के लिए प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, बट लाइट एनर्जी के प्रोपगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. इसीलिए सन की लाइट यहाँ तक पहुंचती है, बट सन के सरफेसेस पे होने वाले आवाज यहाँ पे पहुंचते नहीं. नेक्स्ट वन इज अबाउट
विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स आर यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए कौन सा वेवलेंथ यूज होता है? एक्सरे वेवलेंथ। लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस? व्हीट का ये बार बार आ चुका है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, लास्ट में भी व्हीट का आया था। इसका है एक्सरे वेव्स और इसका है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। तो ये जो डिजीज है, जैसे पोटैटो का स्पिंडल डिजीज वगैरह, ये कुछ 4-5 फेमस है, तो उनको आपको याद करके रखना है, बार बार पूछा जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। विच डिवीजन ऑफ प्लांटे इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइटा। प्लांट क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? प्लांट का क्लासिफिकेशन करते वक्त थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये वाला पार्ट देखते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में टेरिडोफाइटा को पी से दिखाया जाता है। तो थैलोफाइटा में अल्गी लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, धीरे धीरे वो डेवलप होकर ब्रायोफाइटास में जाते हैं। तो ब्रायोफाइटास का एक याद रखो, ब्रायोफाइटास को जब रिप्रोडक्शन करना है तो उसके लिए वाटर मीडियम इज रिक्वायर्ड। इफ तो इसीलिए ब्रायोफाइटो को हम लोग क्या करते हैं? एम्फीबियंस। मतलब वो एम्फीबिया का मतलब क्या होता है कि वो लैंड में भी है और पानी में भी है। टेरिडोफाइटा तो उससे ज्यादा डेवलप्ड रहता है। टेरिडोफाइटा में अगर आप देखोगे तो टेरिडोफाइटा में वहां पे आपको स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेंगे। थैलोफाइटा में तो कुछ नहीं है, ब्रायोफाइटा में थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ता दिखेगा। देन टेरिडोफाइटा, देन उसके आगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे ही बढ़ता जाता है। एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स भी मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में आपको फ्लावर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। टेरिडोफाइटाज में आपको पूरा मतलब वेसल्स सिस्टम मिल जाएगा, पूरा जाइलम वगैरह का। तो वो क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वो याद रखना आपको। विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, पता है आपको। उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर मेड, चूज द 2 रिलेवेंट स्टेटमेंट। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हेलिक्स अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। बराबर है ना? ये डीएनए के स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे जो रहते हैं और इसके बीच में ये, तो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ए तो राइट है, तो ए राइट है, तो ये 2 ऑप्शंस कट हो जाएंगे आपके। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉइल्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो फर्स्ट अगर राइट है तो सेकंड वाला तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा, तो ए बी तो नहीं आएगा, तो हो गया आंसर ए सी। The 2 chains are complementary to each other so that adenine is always paired with thymine and cytosine with guanine. तो ये पेयर्स आपको पता है। ये वाला गलत था स्टेटमेंट, ए एंड सी। Which of the following statement are correct about the cell theory of Schleiden and Schwann? All living things are composed of one or more cells. New cells are formed from the pre-existing cells. There are basic similarities in chemical composition and metabolical function of cells. The activity of an organism is collective activities and interactions of its cellular structures. तो क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं तो वो थ्योरी से रिगार्डिंग ही रहेंगे, तो इसलिए उसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव ही आने वाला है। एक बार पूरे सारे स्टेटमेंट्स आप चेक करो तो आपको पता चलेगा। चलो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग टू सेम क्लास? तो सेम क्लास के लिए कौन से केमिकल, कौन से एनिमल्स रहेंगे? टॉर्पेडो, प्रिस्टिस। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी, टॉर्पेडो, प्रिस्टिस, हिप्पोकैमस। तो सेम है, तो इसमें आंसर आने का चांस ज्यादा है। तो इसमें सिर्फ एक ही उन्होंने चेंज किया है, लास्ट वाला। तो यहाँ पे 61 के लिए आंसर था आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम बायोलॉजी।
Which plants extract latex is used to prepare a narcotics called heroin? हेरोइन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और ये सर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं इसके बारे में। तो उसके लिए कौन सा प्लांट है? पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट्स, तो पॉपी जो है वो हम यूज करते हैं खाने के लिए। आप लोगों को पता होगा मराठी में उसका नाम दिया है खसखस। ओके, चलो नेक्स्ट। Easy question. Match the following from biology regarding the bones. शोल्डर जॉइंट को क्या कहते हैं? ह्यूमरस क्या है? एल्बो, रेडियो, अल्ना क्या है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है फीमर। फीमर के बारे में सुना होगा सबने। फीमर क्या होता है? लार्जेस्ट रहता है ना। और फीमर कहाँ पे रहता है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ये थोड़ा अलग है, अलग है। इसमें क्या बोला है? मैच द फॉलोइंग टू एक्सप्रेस जनरल रिसेम्बलेंस बिटवीन बोन्स एंड ग्रिडल फोरलिम्स एंड हिंड लिम्स। मतलब कौन सा कहाँ पे है ये नहीं, सिमिलरिटीज बताओ। मतलब सिमिलरिटी बताओ, मतलब जैसे कि क्या, मेरा हाथ है तो हाथ में मेरे क्या है? एल्बो। तो हाथ में एल्बो है तो वैसे ही पैर में क्या है? नी है। तो आप एल्बो को नी से कनेक्ट करो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं तो जल्दबाजी में कुछ अलग हो सकता है। कौन सा बोन कहाँ पे है ये नहीं पूछा है, सिमिलरिटीज करनी थी। तो एल्बो नी, तो सी को 2 से कनेक्ट करो। तो सी को 2 से कनेक्ट तो इधर ही किया है, बाकी तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। देन ए का आपका शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर सिमिलर। शोल्डर का जॉइंट और हिप का जॉइंट सिमिलर है। देन ह्यूमरस और फीमर सेम है। ह्यूमरस और फीमर सेम है क्योंकि फीमर हम लोग देखते हैं। और देन रेडियल नॉलेज, कुछ लोगों ने तो एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं, सर इधर 2 नाम है, इधर 2 नाम है, तो 4 का 1, 4 का 1, 4 का 1 इधर दिख रहा है, पर 4 का 1 2 जगह पे दिया है उन्होंने, उतना तो किया है। बट इजी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो 1 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम बायोलॉजी, स्केलेटन सिस्टम से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला देख के ही पता चल गया गलत है। 208 नहीं 206 है ना, तो बोन्स 206 रहते, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। वर्टिब्रा एंड फेशियल बोन्स आर इरेगुलर, बराबर है। वर्टिब्रा का शेप का भी अलग रहता है और फेशियल बोन्स का भी अलग अलग रहता है। तो ठीक है, चलो क्या आ जाएगा आंसर? ओनली बी। इसमें 208 की जगह 206 को याद रखो। 206 में भी पूरा डिवीजन सिखाया हुआ है मैंने। 120 बोन्स इधर जाता है, बाकी बाकी के इधर कैसे कैसे उनका डिवीजन होता है पूरा सब। कहाँ पे सिखाया है? बैच में। आप लेक्चर्स देखोगे तो उसमें पूरा ये पढ़ाया हुआ है डिटेल में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बराबर है। डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, गलत है। इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बराबर है। डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ए एंड सी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिए हैं बाकी स्टेटमेंट उन्होंने। ए एंड सी बराबर है, इजी था ये। नेक्स्ट वाला 66, which chemical compound is used to neutralize the acidity of soil increase due to excessive use of chemical fertilizer? एसिडिटी बढ़ा है तो बेसिसिटी रिक्वायर्ड है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें लाइम वाटर का यूज किया जाता है, तो बी। तो बी में मैंने इधर क्लिक किया तो इधर तो ए डी है, बी यहाँ पे उन्होंने 3 पे दिया है। तो ऐसा इस पेपर में उन्होंने बहुत बार किया है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। तो आप भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, अच्छे से पूरा देख लो। चलो अभी आगे। तो ये वाला थोड़ा सा टफ था अगर देखेंगे तो। Which of the following pairs of metals can be extracted from their ores by using cyanide complex solution?
टफ क्यों था? क्योंकि अगर कुछ भी पढ़ा नहीं है तो इसमें कुछ लॉजिक लगा के वगैरह नहीं कर सकते, ये पूरा पढ़ा होना चाहिए कि एक्सट्रैक्शन में कहाँ पे साइनाइड का यूज होता है। तो इसमें आंसर आपका क्या है? AuNEg। AuNEg अगेन हियर this is C, but in the main options they give it as 2। तो फिर से बच्चा कंफ्यूज, 3 है आंसर सर, 3 में तो इधर डी लिखा है, तो ऐसे कंफ्यूजन होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। टाइम अच्छे से देखो, सारी चीजें करो। ऐसा उन्होंने इस पेपर में बहुत बार किया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब एज कंपेयर टू 23, 24 क्वाइट इजी था। 23 में तो बीच में वो क्वेश्चंस वगैरह दिए थे जो डिफिकल्ट हुआ था। अभी क्या है, तोड़ दिया मतलब क्या क्या डिकम्पोज किया, तो सी आ गया। तो सी इधर किधर है? इधर नहीं लिखा है, सी उन्होंने ए में लिखा है, तो ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक अलग रहता है, डिस्प्लेसमेंट में जगह चेंज होती है। फोटोकेमिकल अलग रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है, आपने हीट देके तोड़ दिया KClO3 को। नेक्स्ट वन इज अगेन इजी क्वेश्चन, इसका रेफरेंस 2021 के पेपर में मैंने करवाया था। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइसोटोप इज कॉल्ड हेवी हाइड्रोजन। तो आइसोटोप क्या होता है? पहली बात तो इसका आंसर तो है ड्यूटेरियम। आइसोटोप्स मैंने करवाया है पहले भी। आइसोटोप्स मतलब क्या है कि जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन का ही हमने एग्जांपल लिया था। अब ये तीन जो नाम है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों नाम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो इसमें हाइड्रोजन को प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम को मैं डी लिखता हूँ, ट्रिटियम को टी लिखता हूँ। तो इनमें फर्क क्या है? तो ये 111 बट यहाँ पे है 1123, ये डिफरेंस है। ये क्या है 1123, ये दिखाता हूँ मैं। हाइड्रोजन ऐसा एकलौता एलिमेंट है कि जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास एक प्रोटॉन है बस, न्यूट्रॉन नहीं है। और फिर यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी एक है और एटॉमिक मास नंबर भी एक है। मतलब ये सारे एक्सेप्शनल आपको पूछ सकते हैं ना, ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों सेम है? हाइड्रोजन। तो अभी होगा क्या कि ड्यूटेरियम के वक्त क्या हो गया, पी तो वैसे के वैसे है, ई तो वैसे के वैसे, बट इसमें एक कहाँ से बढ़ा? तो इसमें आ जाता है एक न्यूट्रॉन, तो ये आपका 2 बन गया, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर में तो दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या स्टोरी होगी, एक प्रोटॉन के साथ यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स को इसीलिए पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम को ढूंढने जाओगे तो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ प्रोटियम है, दैट इज हाइड्रोजन ऑन नंबर 1, उससे ही पीरियोडिक टेबल अपना स्टार्ट होता है। तो ये आइसोटोप्स के बारे में अच्छे से समझ लो सारी चीजें। तो यहाँ पे बोला है हेवी हाइड्रोजन किसको बोले जाते हैं? तो ड्यूटेरियम, क्योंकि इससे हेवी वाटर क्रिएट होता है। जैसे हमारा नॉर्मल पानी है H2O, तो H से हेवी है, तो इसमें जो पानी तैयार होगा उसको हेवी वाटर बोलते हैं, D2O। जो कि आप अगर देखोगे तो न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं उसमें ये हेवी वाटर का यूज किया जाता है। एंड आइसोटोप्स का कंसेप्ट अगर सीख रहे हो तो आइसोटोप्स का ऑपोजिट कंसेप्ट जो भी है आइसोबार, वो भी पता कर लो। आइसोबार इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दिस। आइसोटोप्स में जो है कि सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो इसमें क्या है, सेम एटॉमिक मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। चलो, तो इसमें आइसोटोप्स में याद रखो, आपको आइसोटोप्स में मैच द फॉलोइंग वगैरह भी आ चुके हैं पहले। नेक्स्ट इज डैश डैश इज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स एंड फैट। अनसैचुरेशन इन ऑयल एंड फैट्स को देखने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसमें सेपोनिफिकेशन, आयोडीन वैल्यू, विस्कोसिटी वैल्यू, एसिड वैल्यू। आयोडीन वैल्यू इज करेक्ट आंसर। तो इसका एक रेफरेंस स्कूल बुक्स में भी है कि किसी चीज में अगर कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है तो हम आयोडीन टेस्ट करके वो चेक करते हैं। तो उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये आंसर कर सकते थे। तो 21, 22, 23, 24 चारों पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 21
का इजी था, 22 23 में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाया था, 23 में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया था, 24 में फिर से लेवल अप आ गए, 25 में भी लेवल अप हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, मीडियम में ही रहेगा। और आपने अगर पढ़ा है, मेरी बैच की है, तो 20 में से आप नियर अबाउट 15 क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं, 12-13 मार्क्स तो आपको आ ही जाएगा। और आपने सभी बुक्स पढ़े हैं, आपको सब कुछ नॉलेज है, बहुत सारे बैचेस किए हैं, तभी 20 आउट ऑफ 20 किसी को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को चेक करने पड़ते हैं गूगल पे, कभी कभी ऑप्शन गलत होता है, कभी कभी वही लोग हैश लिख के देते हैं, तो क्वेश्चन ही 20 के आउट ऑफ 20 राइट है क्या वो नहीं पता, तो राइट हम लेके कैसे आएंगे। तो ये बार बार मैं बोलने की वजह एक ही है कि मुझे स्टूडेंट्स के माइंड में वो डेवलप करना है कि आप स्कूल लेवल का मत सोचो कि मुझे सब आएगा, मुझे सब आएगा, मुझे सब आएगा, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आएगी, छोड़ दो, उसका टेंशन मत लो। चलो फिर आज का सेशन खत्म करते हैं, यहाँ पे पूरा मैंने डिस्कस किया है, चारों पेपर्स देख लो, मराठी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सभी के आंसर्स अच्छे से दिए हुए हैं, चेक करके उसमें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू।